میرا کہنا تھا کہ عورت ہر چیز کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، لیکن واحد اپنا شوہر کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اور جو عورت اپنے شوہر کسی دوسرے عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہے، یا تو وہ عورت نہیں ہوتی یا پھر وہ بے وفا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی مجبوریاں بھی انسان کے آگے آ جاتی ہیں کہ ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو کبھی نہیں کیا ہو۔ میرا نام دعا زیرہ ہے۔ میں اور میرا بھائی اپنے ماں باپ کی دو ہی اولادیں تھیں۔ میں کوئٹہ کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابا سرکاری نوکری کرتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں بھائی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا۔ کچھ اللہ کے کرم سے گھر میں ہر چیز زائد تھی۔ ابا نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اچھا کھلایا، پڑھایا، پہنایا۔ میں MSc کی اسٹوڈنٹ تھی جب یونیورسٹی میں مجھے ذکریہ نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تو وہ بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ مجھے اس کی خاموشی، اس کا رویہ بہت پسند تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ لڑکوں میں بیٹھتا تھا نہ لڑکیوں میں، بس چہرہ جھکائے نیچے اپنے کام سے کام رکھتا، جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے دوستی کرنی چاہی لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، ضد کیسے نہ کرتی۔ دوبارہ دھتکارے جانے کے بعد جب گھر آئی تو بخار میں تپ رہی تھی۔ ہفتہ بخار میں رہنے کے بعد جب ہوش میں آئی تو پتہ چلا پورا گھر میری فکر میں بوکھلا گیا تھا۔ میرے ابا میرے لیے بہت پریشان تھے۔ اماں بھی بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی آنسو بہنے سے روک رہی تھی۔ میں خاموش رہنے لگی تھی لیکن میرے گھر والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اماں نے مجھ سے اس خاموشی کی وجہ پوچھی۔ میں نے بھی بغیر جھجک کے بتا دیا کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اماں ابا نے مجھ سے حامی بھر لی کہ وہ ذکریہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ امیروں میں یہ بات معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تبھی اس بات کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ لڑکی والے لڑکے گھر رشتے لے کر جائیں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اگلے روز جب میں یونی گئی تو پتہ چلا کہ ذکریہ یونی نہیں آیا۔ مجھے پہلے بہت غصہ آیا لیکن میں نے اس خوشی میں سب کچھ فراموش کر دیا کہ وہ آخر کو مجھے ذکریہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اماں ابا اسی روز ذکریہ کے گھر چلے گئے۔ ذکریہ کے گھر کا پتہ میں نے اس کے دوستوں سے لیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ واپس آئے تو میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابا تو کچھ بھی کہے بغیر کمرے میں چلے گئے، جبکہ اماں میرے پاس آئی اور مسکرا کر میرے سر پر پیار دیا۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ شاید ابا ایموشنل ہو کر گئے ہیں، لیکن اماں کی اگلی بات نے تو جیسے میرے جسم سے روح ہی کھینچ لی تھی۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ ذکریہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، وہ ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے اور اس کے ابا کے مالک نے ہی اسے پڑھنے کے لیے اتنی اچھی یونیورسٹی میں بھیجا ہے، میں وہ ساری رات جاگ کر کاٹی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ پیار کر سکتی ہوں، لیکن پیار تو سوچ سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ اگلی صبح میں خاموشی سے یونی چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ذکریہ پہلے سے موجود تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا گریبان جکڑا اور اس کو سب کے سامنے بےعزت کر دیا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خاموش رہا اور میری طرف دیکھتا رہا۔ اور پھر میں تنہا کلاس میں جا کر رونے لگ گئی۔ مجھ پر تو جیسے پیار کا بھوت سوار تھا۔ اس دن گزرنے کی دیر تھی کہ میں گھر پہنچی اور جاتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے ذکریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میرے والدین نے مجھے بہت سمجھایا لیکن سمجھ تو تب آتی جب سر سے پیار کا بھوت اترتا۔ اماں ابا دوبارہ سے میری ضد کرنے پر ذکریہ کے گھر گئے اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ لوگ غریب ضرور تھے لیکن شریف لوگ تھے۔ لیکن ذکریہ سے رشتے کے بعد میری سزا شروع ہوئی تھی۔ مجھے سب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میری سہیلیوں نے مجھے سمجھایا کہ صرف پیار محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد انسان کو جب کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو سمجھ آتا ہے کہ اصل زندگی کس کا نام ہے۔ میرے جہیز کے نام پر دنیا کی ہر چیز مجھے لا کر دی گئی۔ بنگلہ گاڑی دی تاکہ ان کی بیٹی آرام سکون سے آسائش کی زندگی گزار سکے۔ وہ کہتے ہیں نا، چیزیں بھی نصیب سے استعمال ہوتی ہیں۔ میرے نصیب سے شاید میری خوشیاں ہی میں نے خود ہی ختم کر دی تھی۔ اپنے نصیب کا گلا میں نے خود گھونٹا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرا نکاح طے ہو گیا۔ ذکریہ بہت خاموش طبیعت تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ شروع میں لڑکے بہت خوش مزاج ہوتے ہیں، لیکن ذکریہ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو۔ میں اکثر ایسے ہی سوچتی اور پھر خود کو تسلی دینے کے لیے خود ہی اس بات کو جھٹلا دیتی، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتی ہے۔ میں نے بھی ذکریہ کی عجیب
अजीब सरगर्मियां देखने के बाद भी अपनी आंखें बंद रखी। एक रोज शरारतन मैं इसके घर के पास से गुजरी। अमीर बाप की अमीर बेटी थी, तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मैंने देखा कि जिक्रिया अपने घर से निकलता हुआ सामने से आते रक्शे पर बैठा है और रक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछे करते हुए उसके पीछे पीछे चलती गई, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गई जब वो निकलकर एक बंगले में चला गया, जिसके बाहर लिखा हुआ था, यहाँ हर तरह का इलाज किया जाता है। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस बंगले के अंदर इलाज के नाम पर क्या होता है, लेकिन जिक्रिया का वहां जाना मुझे बहुत अजीब लगा। मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही थी, इसीलिए बात को रफा दफा करते मैं घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में खलचल मची हुई थी। ना जाने जिक्रिया को क्या हुआ है जो वो वहां गया। घर पर किसी से जिक्र करती तो अम्मा अब्बा मुझे फिर से समझाने बैठ जाते। मोहब्बत को खो देने के डर से मैंने किसी से जिक्रिया के जिक्र भी नहीं किया। वक्त का काम है, गुजर जाना तो गुजर जाता है। दिन पर लगा के उड़ गए और वो दिन भी आ गया जब मुझे जिक्रिया के हमरा इसके घर रुखसत होकर जाना था। अम्मा अब्बा से मिलते हुए कहीं आंसू मेरी आंखों के बाहर तोड़कर निकल आए। वालदेन थे इसलिए दुआओं में मुझे रुखसत किया। शादी की रात भी जिक्रिया ने मुझसे कोई ख़ास बात नहीं की। मैं हैरान थी जिक्रिया के रवैये से, लेकिन शादी का पहला दिन था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। ये छोटा सा घर भी मुझे जन्नत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ मेरी मोहब्बत थी और मोहब्बत अंधी होती है। शादी के कई दिन बाद जिक्रिया घर पर बोलकर अपने एक कज़न की तरफ चले गए। मैं परेशान हो गई, मैं अक्सर रोने लग जाती। मेरे रोने से वहां पर किसी को क्या लेना देना था। मेरी सास और मेरी एक नंद अपनी जिंदगी में मगन थे। मेरा छोटा देवर अजीब व गरीब आदत का मालिक था। मैं जब किचन में काम कर रही होती तो अक्सर वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगता कि आपने क्या देखा था जिक्रिया में, आप अब भी चाहे तो आप जिक्रिया से तलाक लेकर मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जिक्रिया से अपने देवर के बारे में ज़रूर बात करूंगी, लेकिन बात तो इस वक्त करती जब जिक्रिया मुझे वक्त देते। लेकिन इन्हें तो जैसे आज़ाब लगता था। मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन खामोश रहती थी। जान तो इस वक्त निकली जब घर में मेरी सास ने एक नई ख्वाहिश पैदा कर दी। मेरा जिस्म एकदम सुन पड़ गया, जैसे किसी ने रूह को खींच लिया हो। मेरी सास अब अपने पोता पोती का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वो क्या जानती कि इनके बेटे और बहू में अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ से है ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रात के वक्त जिक्रिया जब घर आए तो मैंने इन्हें समझाया, इनसे ज़बरदस्ती बात की। खाना खाते वक्त उन्होंने बस हाँ हूँ की। मैंने अपने देवर की बात को छुपाते हुए अपनी सास की नई ख्वाहिश के बारे में इन्हें आगाह किया। औलाद का नाम सुनते ही जैसे मियाँ बीवी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मेरे शौहर के चेहरे पर एक अनदेखी सी बेचैनी सी खौफ था चेहरे पर आया। पसीना मुझे कश्मकश में मुब्तला कर गया। मैंने फिक्रमंदी से जैसे ही अपने शौहर के माथे पे हाथ रखा तो वे एकदम घबरा कर मुझसे दूर हो गए। मैं तो अपने शौहर की हालत देखकर खौफजदा हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने शौहर से कोई सवाल ना किया और इनके सामने से बर्तन उठाकर किचन में रख आई। मैंने अपने शौहर से दोबारा कोई सवाल ना किया। सर्दियों की यक ठंडी रात में वो घर की बालकुनी में चले गए, लेकिन इनके चेहरे पर पसीने ऐसे थे जैसे जून जुलाई की गर्मी में आता है। सुबह में नीचे आई, अपनी सास और अपने लिए नाश्ता बनाया। नन कॉलेज जा चुकी थी, अब वो घर रह रहकर मैं भी बोर होने लगी थी। इसीलिए मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी सास से ज़रूर बात करूंगी। सास ने नाश्ता शुरू किया तो मैं भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। गला खंकार कर बात का आगाज किया, अपनी सास को अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे नज़रों से ही सालिम निकल जाएंगी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से कहा कि मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। सास तो जैसे पत्थर की हो गई थी और मुझे जोर से डांट दिया कि अब क्या ज़रूरत पड़ गई है पढ़ने की। जब पढ़ने की उम्र थी तब तो इश्क माशूकी ही ख़त्म नहीं हो रही थी मेरी, और अब मुझे दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया। मुझे अपनी सास से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मेरी तो जैसे जान ही लबों पर आ गई थी। कहाँ अम्मा अब्बा ने कभी उफ तक नहीं की थी, कहाँ इतनी बातें सुनने को मिल गई। मैं खामोश अच्छी बहू की तरह वापस से अपने कमरे में आ गई और खूब रोई कि जिसके नाम के ताने मिल रहे हैं, ना तो वो मेरा था और जो ताने दे रहा था ना वो मेरा था। मेरे वालिदैन ने दोबारा कभी मेरी तरफ मुंह नहीं किया था, और मैं भी इनकी तरफ जाती भी तो किस मुंह से जाती। बहुत धड़ल्ले से कह के निकली थी कि मैं वहाँ खुश रहूंगी।
इस रात पहली बार मेरे शौहर ने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी सूजी हुई आंखें देखकर परेशान हो गया। मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे रोने की वजह पूछी। मुझे और क्या क्या चाहिए था, मैं तो इसी में बहुत राजी हो गई थी। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ औलाद की कमी भी मुझे शिद्दत से महसूस होने लगी थी। कुछ मेरी सास के ताने और मेरे शौहर की लापरवाही ने मुझे मजीद चिड़चिड़ा और बदजन कर दिया था। मैंने मैंने अपने शौहर को जिद करके डॉक्टर के पास जाने को बोला तो वो हत्ते से उखड़ गए। गुस्से से बोलने लगे, चलने चिल्लाने लगे, पूरा घर सर पर उठा लिया। मुझे इनके रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इनको औलाद की ख्वाहिश नहीं है, या ये नहीं चाहते कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे? अब तो जैसे ही हर चीज़ से थकने लगी थी, हर चीज़ से आवाज़ार, हर चीज़ से बेदिल हो गई थी। लेकिन मेरा शोहर समेत मेरे तमाम ससुरालियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शादी के 2 साल बाद मेरी नंद ने नया शोशा छोड़ा कि ज़िक्रिया दूसरी शादी कर ले। मुझे तो जैसे ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया गया था। ये बात मेरे लिए ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर देने वाली थी। मुझे हर वक्त ये बात सताती रहना कि मैं बांझ हूँ, इनका काम बन गया था। कभी दूसरी शादी की धमकी तो कभी मुझे तलाक देने की ख्वाहिश मेरे कानों में सीसा पिलाई डालने के बराबर थी। एक औरत होकर और अपने माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर। लेकिन अगर मोहब्बत आपको अजियत देने लग जाए तो इस पर फातिहा पढ़ लेना सारी ज़िंदगी अजियत से भरपूर गुलामी की ज़िंदगी गुजारने से लाख गुना बेहतर है। कई साल में बैठी मैं पकती रही, लेकिन एक पल को भी सुकून मेरे नसीब में ना बना। शादी के कई साल तक औलाद ना हुई तो अब मैंने भी शौहर को डॉक्टर के पास जाने का कहना शुरू कर दिया। वो अब भी गुस्सा करते, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। सास को कहा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि अपने बांझपन का कसूर मेरे बेटे पे ना डाल। लेकिन इस बार तो मैं किसी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। जो भी जैसे भी करके मैं अपने शौहर का मुआयना करवाने डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर पहले तो मेरे शौहर को देखकर हैरान रह गए। मुझे लगा जैसे वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मैं हैरान भी थी कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर से कुछ दूरी पर था। और फिर मेरे शौहर का यहाँ क्या काम? मैंने डॉक्टर से मुआयना करने को बोला तो तब मालूम हुआ कि मेरे शौहर कभी बाप नहीं बन सकता, मतलब कि वो एक नाम मर्द था। लेकिन मेरी आंखें हैरत से फटने को थी जब पता चला कि डॉक्टर ने बहुत पहले ये बात मेरे शौहर को बता दी थी। और मेरे शौहर ने ये बात सबको बता रखी थी, सिवाय मेरे। और मेरे ससुराल सब जानता था, मैं नहीं जानती कि फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मेरा सर फटने लगा था, आसमान मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। रोते हुए क्लिनिक से निकली और पुरशिकवा निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर एकदम रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। लेकिन इस वक्त बस मैं अकेली रहना चाहती थी, किसी की बात सुनने को दिल भी नहीं कर रहा था। मैं घर पहुँची और चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया और फिर एक एक करके सबको आईना दिखाया। सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। फिर मैंने अपने शौहर की तमाम बातें अपने शौहर को तंजिया बताई, तो जैसे वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान नज़रों से मेरे देवर को देखने लगा, जैसे इन्हें मेरे शौहर की इस हरकत की उम्मीद ना हो। खैर, वक्त का काम है, गुजरते रहना तो वो गुजर ही जाता है। अब मैं अपने शौहर को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वो अपना इलाज करवाने लगे थे। बहुत सी जगहों पर दिखाने के बाद भी जब मेरे शौहर को आराम ना आया तो वो भी अब मायूस होने लगे। मेरी मोहब्बत ने ये गवारा किया कि मैं इन्हें इस मुश्किल वक्त में जहाँ छोड़ जाऊँ, इनका साथ हर पल में हर लम्हा देती रही। एक रोज़ मैं इनके साथ एक नए डॉक्टर के पास गई, लेकिन वहाँ भी इनका इलाज नामुमकिन था। मैं अपने शौहर के साथ घर के लिए निकली तो एक लंगड़ी फ़कीर ने मुझे देखकर बोली, बीबी अपने शौहर की शादी मुझसे करवा दे तो इसका इलाज कर दूंगी और जल्द तुझे खुशखबरी मिलेगी। मेरी रूह कांप गई। मैं रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ वक्त सोचने के लिए ले लिया, इसके बाद मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई और शौहर की शादी फ़कीरनी से करवा दी। मेरा तो जैसे हर फैसला ही गलत था। अब मुझे खुद से घिन आने लगी थी कि क्यों मैंने अपने शौहर को किसी के आगे फेंक दिया। कितनी बेबस और कितनी अजनबियत थी मेरे शौहर की आंखों में इस वक्त, जब मैं फ़कीरनी से शादी के लिए उनको मना रही थी और वो किसी सूरत मानने को नहीं रहे थे।
बहुत मुश्किल से अपनी कसम देकर मैं इनको फ़कीर ने से शादी पर राज़ी किया। फ़कीर ने मुझे अपना पता जो दिया था वो एक खुली जगह थी, जहाँ छोटी-छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। अब तो मेरी सास का रो-रो कर भी बुरा हाल होने लगा था, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। एक माह तक शौहर वापस न आया तो मैंने अपने शौहर को तलाश करना चाहा। सबसे पहले मैं फ़कीरनी की झोपड़ी की तरफ गई, लेकिन अंदर झाँका तो जान निकल गई, वहाँ तो कोई भी मौजूद ना था। मैंने उधर-उधर की झोपड़ियों में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ तो अरसे दराज से कोई भी रिहाइश पज़ीर नहीं है। मुझे हैरत का गहरा झटका लगा, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास इस फ़कीरनी का कोई भी पता नहीं था। मैंने इधर-उधर झाँका, लेकिन सब बेकार था। वो फ़कीरनी वहाँ होती तो मिलती। मैं जल्दी से घर पहुँची और सारा किस्सा अपनी सास को बता दिया। मेरी सास तो ऊँची-ऊँची रोने लगी। मेरी नंद भी मुझे बुरा-भला कहने लगी कि मैंने जानबूझकर इसके बेटे को इस फ़कीरनी के साथ भेजा था। मेरी तो जान निकलने लगी थी। ये सब तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, जो सब मेरे साथ हो रहा था। मैं कहीं दिन इंतज़ार करती रही और कहीं दिन इस झोपड़ी में जाकर देखती रही लेकिन वहाँ ना बंदा ना कोई बंदे की ज़ात थी। अब तो जैसे मैं भी मायूस होने लगी थी। वक़्त जैसे रुक सा गया था। कई जगहों पर अपने शौहर को तलाश किया, लेकिन नाउम्मीदी से घर लौट आती। एक रोज़ मैंने अपने अब्बा के घर जाने का फ़ैसला किया, ताकि इनकी मदद से मैं अपने शौहर को तलाश कर सकूँ। मैं जब अपने अब्बा के पास अपने आलीशान महल नुमा घर में गई, तो मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे अब्बा आँसुओं के साथ रोने लगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, इनको हौसला दिया और उनको सारी तफ़सील बताई। अब्बा ने मुझे अफ़सोस से देखा कि मैं मोहब्बत के अफ़साने पढ़ने वाली एकदम कैसे बहक गई और अपने शौहर एक फ़कीरनी के साथ न जाने कहाँ भेज दिया। मैं अब्बा के आगे हाथ जोड़ने लगी और इनसे मदद तलब करने लगी। उन्होंने भी मेरी मदद करने की ठान ली और मुझे अपने एक कज़न के पास ले गई, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरे शौहर को ज़रूर तलाश करेंगे, लेकिन इनकी एक बात ने जैसे मेरे वजूद से जान खींच ली हो। जब उन्होंने ये बताया कि एक गैंग जो फ़कीर बनकर लोगों को इनकी कमज़ोरी से पकड़ता है, वो उनको अपने जाल में फंसाकर इनके गुर्दे, दिल और जिस्म के कई अज़्ज़ा निकाल कर उनको बेच कर लोगों को कत्ल करके उनको खेतों या वीरानों में फेंक देता है। मेरी टाँगें खौफ से काँपने लगीं। मेरे अब्बा ने मुझे बरवक़्त थामा ना होता तो यकीनन मैं ज़मीन बोस हो चुकी होती। मैं अपने अब्बा के सीने लगी रोने लगी। मेरे अब्बा ने मुझे हौसला दिया और बहुत समझाया कि ज़िक्रिया को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा और दिल में अजीब-अजीब विसविसे आने लगे। अब्बा मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने बहुत ज़िद की अपने घर वापस जाने की, लेकिन उन्होंने कहा, जब तक ज़िक्रिया मिल नहीं जाता मैं इनके साथ ही रहूँगी। मैं भी मान गई और इनके हमरा घर चली गई। मेरी अम्मा तो जैसे मुझ पर वारी सदके जाने लगी थी। मैं अपनी अम्मा के सीने से लगी बहुत रोई। इस सब से एक फ़ायदा हुआ था कि मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने लगी थी। अपने शौहर के मिल जाने के लिए दुआ करने लगी थी। मुझे ऐसा देख मेरी अम्मा अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था कि जीन्स टी-शर्ट पहनने वाली, फ़ैशन करने वाली एकदम कैसे बदल गई थी और कैसे एकदम से सादगी इख्तियार कर ली थी। अम्मा शाम का खाना बनाने लगी तो मैं किचन में चली गई और अम्मा से कहा कि आज मैं खाना बनाती हूँ। तो वो मेरी तरफ मुँह खोलकर हैरानगी से देखने लगी, जैसे कह रही हूँ, आज सूरज किस तरफ से निकल आया है। मैंने मुस्कुराकर अपनी अम्मा की तरफ देखा और उनके गले से लग गई और बोला, अम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी के बाद बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, मैं भी ऐसे ही बड़ी हो गई हूँ। मेरी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे माथे पर बूसा दिया। मैं अपने वालिदैन की लाडली ज़रूर थी, लेकिन इतनी पाकीज़ा मोहब्बत मुझे कभी नहीं मिली थी। मैंने आंसू साफ़ किए और खाना बनाने लगी। अम्मा मेरे पास कुर्सी पर बैठते हुए मुझे इतनी सफाई और सुघड़पन से काम करता देख मुस्कुराने लगी। अम्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा ये सब कहाँ से सीखा, तो मुझे हंसी आ गई अपनी अम्मा की मासूमियत पर, और फिर उनको जवाब दिया कि अम्मा, मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है, मोहब्बत अपना आप बनवा लेती है। मेरी अम्मा ने कभी मेरे मुंह से इतनी बड़ी बातें नहीं सुनी थी। वो खामोशी से सर झुका गई। कुछ देर गुजरी तो वो ख़ास माँग वाले सवाल करने लगी कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कैसा है, मेरी नंद का रवैया कैसा है। मेरी नंद कुछ कहती तो नहीं। मैंने मुस्कुराकर अपनी अम्मा को तसल्ली दी और कहा, अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बहुत अच्छे हैं। झूठ बोलने का एक फ़ायदा हुआ कि मेरी अम्मा के चेहरे पर सुकून सा तारी हो गया था।
खाना तैयार हो चुका था। इतनी जल्दी खाना तैयार होता देख अब मेरी अम्मा को यकीन आ गया था कि इनकी बेटी बड़ी हो गई थी, जिसका इज़हार उन्होंने मेरा हाथ चूम कर किया और मुझे बोला कि जब ज़िक्रिया मिल जाएगा ना तो इसका शुक्रिया अदा करूँगी कि इसने अपनी मोहब्बत में मेरी बेटी बड़ी कर दी। खाना लगाया तो अब्बा ने निवाला लेते ही खाने से हाथ उठा लिया। मुझे लगा कि खाना अच्छा नहीं है, लेकिन अब्बा ने जब अम्मा को कहा कि बाहर से खाना क्यों मंगवाया है, बेटी आई थी घर खाना बनाती। भला ये बेशक बहुत मज़े का है, लेकिन इसमें बाहर का जायका आ रहा है। अब्बा की बात सुनकर मैं कई साल बाद बहुत खिलखिला कर हंसी। अब्बा मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और खुशी से इनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने इनको बताया कि ये खाना मैंने नहीं बल्कि इनकी आपकी बेटी ने बनाया है, तो जैसे इनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। इतनी तब्दीली किसी को भी हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन ये हकीकत थी कि मैं ज़िक्रिया की मोहब्बत में ख़ुद को बदल चुकी थी। अभी हम खुशगपियों में खाना खाकर हटे ही थे कि अब्बा ने मुझे इनाम के तौर पर कहीं पैसे दिए। ये भी अब्बा की पुरानी आदत थी कि जब भी कोई अच्छा काम करती तो वो मुझे इनाम के नाम पर बहुत से पैसे देते थे। अचानक अब्बा के फ़ोन की घंटी बजी। अब्बा ने फ़ोन उठाया तो एकदम अब्बा का रंग पीला पड़ गया। अब्बा के तासुरात देखकर मेरी भी जान निकलने लगी। अब्बा ने फ़ोन पर मौजूद शख्स से कुछ बातें करके, जिसकी मुकम्मल समझ नहीं आ रही थी, फ़ोन बंद कर दिया और मुझे अपने साथ चलने को बोला। मैंने पूरा रास्ता अपने अब्बा से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? तो अब्बा ने बस मुझे अपने साथ लगाया और बोला, दुआ करो जो सुनने में आया है वो सब झूठ हो। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जा के रुकी। अब्बा मुझे लिए खेतों की तरफ चल पड़े। खेतों में जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत से पुलिस एहलकार जमा हुए हुए थे। मैंने अब्बा से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ और आप मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं? तो अब्बा ने मुझे एक सफ़ेद कपड़ा लिपटे वजूद के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर सफ़ेद कपड़ा दिया हुआ था जो जगह जगह से खून में लथपथ था। अब्बा के इशारे पर एक पुलिस एहलकार ने इस वजूद से जैसे ही कपड़ा हटाया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान मेरे सर पर आन गिरा हो, और कोई और नहीं ज़िक्रिया था, जिसको बहुत बेदर्दी से मार कर खेतों में फेंक दिया गया था। मैं मुंह पर हाथ रखे अपने अब्बा के सहारे खड़ी थी। अब्बा भी रो रहे थे। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैयत को घर पर लाया गया तो ज़िक्रिया के घर जैसे क़यामत का समा था। हर तरफ चीख गूंज रही थी और सब की कसूरवार बस मैं थी। ज़िक्रिया की मौत की ज़िम्मेदार मैं थी। मेरी लालच ने मुझे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। ज़िक्रिया की मौत ने जैसे सबको मुझसे दूर कर दिया था। मेरी सास ने मुझसे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। कोई मुझे बुलाने का रवादार नहीं था। इन सब का ख़मियाज़ा मेरे छोटे भाई को भुगतना पड़ा, एक नापसंदीदा औरत यानी मेरी नंद से शादी करने की सूरत में। लेकिन मेरे भाई भी बहुत हिम्मत वाला था, तभी इसने मेरी नंद से शादी कर ली। लेकिन दोनों के नसीब अच्छे थे, तभी घर पर सुकून और खुशियों से भर गया था। मेरी नंद ने अपनी पहली औलाद मेरी झोली में डाल दी, लेकिन मैं क्यों कर किसी की औलाद पर अपना हक जमाती। तभी मैंने अपनी नंद को ढेर सारी दुआओं के साथ इसकी औलाद उसे वापस कर दी। मेरी सास ने मुझसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं इसके छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी सास को भी मेरे फैसले से कोई मसला नहीं था। अब्बा से कहकर मैंने एक एनजीओ बनवाया जहां लाचार मजबूर माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। मैं इनकी मदद करने लगी थी, या शायद अपने गुनाहों में कमी के लिए ये कदम उठाया था। आज मैं लिखूं बच्चों को अपने बच्चे बनाकर इनको पाल रही हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे औलाद इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे इतने बच्चों को जो पालना था। अल्लाह के हर काम में कोई मसलहत ज़रूर शामिल होती है। जो दे जितना दे इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए।